Voice clear? Vipin? Okay. So, till yesterday, we were discussing a part of the jurisdictions of the civil court. Today, we will try. Voice clear? All right. So, today we will try start from section 21 and we'll try to go up to 30 to 33. Right. And 21 deals about the objections to the jurisdiction, which was conferred starting from section 16 to 20 over the civil courts. Okay, so section 21, Vipin, you read out section 21. Objections to jurisdiction. Point 1. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellant or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. And Wait, in all wait. So section 21 first of all speaks about the appellate or the revisional courts. So it simply says that when an appellate court or revisional court is approached by someone stating that the court does not have the jurisdiction, so who will be that someone? Definitely that defendant, because the plaintiff has himself come before the court. He will not say that this court does not have the jurisdiction. So if the defendant goes to the court in respect to the jurisdiction challenge, then the appellate or revisional court may take it into account, but subject to certain contingencies and certain stipulations. And what will those be? Vipin, continue. and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice. So now three conditions are there. First of all, whenever an objection before the appellate or the revisional court is to be made, it should be made at the very first instance or opportunity available. What will be that? Meaning thereby, whenever first time you go to the court or you have a chance to disclose your defense, that is filing of the written statement. Okay, number one. Secondly, the another aspect has been made when in some categories of suit or proceedings the issues are to be settled, then definitely the objection, if any, should be taken prior to settlement of issues. Why is it so? And third, I will come to that. And third, it should be consequent, there should be a consequent failure of justice for the reason of non entertaining that objection by the defendant, even if he has taken so. So if we have a question in our mind why the objection should be taken before settlement of issues, anybody? Yeah. Because a preliminary issue in this regard with regard to jurisdiction is to be taken, and only if the issue is decided in the favor of the plaintiff, the rest of the issues will be considered by the court. No, that was the earlier law. Now the law is very settled that all the possible objections or issues should be decided at one go. It is not only that there may be a preliminary issue and that can be decided and the court can come to something. This may be one of the aspects only for the legal, purely legal issues. Even if they are there and the issues are framed, we are saying when the issues have yet not been made, for the reason that the court itself can come to some conclusion in respect of its jurisdiction. When the court will not have the knowledge about the jurisdiction and issues have been framed, at that point of time all the pleadings are complete and the issue of jurisdiction will not be able to be incorporated therein, and the effect will be the person who is there to object will unnecessarily move an application like adding of the issues, framing of additional issues and all, and this will take time and waste the time of the court itself. So the basic idea is that if you are aggrieved, then you should come to the court at the first earliest possible opportunity, and if the settlement of issues is there,
it should be done prior to that. Can anybody of you give me an example why this settlement of issues has been said? Is there is a possibility that settlement of issue may not be framed? कोई उदाहरण कोई बता सकता है? बताइए. Again, if like application preliminary, not preliminary, but application like 711 is filed for rejection of the plaint, and it is allowed, then in that instance issue will not be required. Did you hear my question? एक तो आप अपना मोबाइल या जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है उसे सीधा कीजिए. आप बिल्कुल टेढ़े दिख रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्शन. उल्टे शायद घूमा हुआ. वन. यस, आपने मेरा सवाल सुना? बगैर सुने रिएक्ट कर रहे हैं. मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल आप सब लोगों से ये था कि क्या ये जब ये कहते हैं कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जहां भी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होने हैं वहां उससे पहले लेनी चाहिए, तो क्या ऐसी और प्रोसीडिंग या ऐसे कोई सूट की संभावना है जहां ऐसी कंडीशन ना हो कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ही ना हो तब भी आपको लेनी हो कोई ऑब्जेक्शन? गिव मी एन एग्जांपल. इट मे बी लाइक ऑर्डर 37. किसी ने एक समरी सूट फाइल कर दिया, आपको जाके अपीयरेंस दी और लीव टू डिफेंड फाइल किया. आपने लीव टू डिफेंड में ऑब्जेक्शन नहीं ली ज्यूरिडिक्शन की, और बाकी आपके पास कोई और ग्राउंड था नहीं, आपकी लीव टू डिफेंड ही चली गई. देन व्हेन विल यू टेक योर ऑब्जेक्शन? बिकॉज इश्यूज तो तब फ्रेम होंगे जब आपकी लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट होगी. फिर आप डब्ल्यूएस फाइल करोगे, डब्ल्यूएस में अपनी डिफेंस बताओगे. तो लीव टू डिफेंड के वक्त भी आप बताओगे, अगर कोर्ट को बताना है कि आपके पास ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है. हो सकता है कि अगर आपने फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जब थी वो तब अवेल नहीं की, तो आपका वो कंटेंशन रिकॉर्ड पे नहीं आया, और कंटेंशन चूंकि रिकॉर्ड पे नहीं आया इस वजह से कोर्ट ने देखा ही नहीं, और बाकी कोई सब्सटेंशियल आपके पास ग्राउंड नहीं था और कोर्ट ने उसे प्रोसीड कर दिया आपके खिलाफ. राइट? आवाज क्लियर है? मुझे कुछ ऑल राइट. पढ़ो आगे. विपिन कंटिन्यू. Court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice. Sound here. So basically, when we go by section 21 in entirety, there are possible three classes, right? One is in respect to the jurisdiction. Jurisdiction hereby will usually mean territorial jurisdiction, because they have created a separate class for pecuniary jurisdiction. And thereafter, there will be a third category, will be the local jurisdiction in respect to the executional proceedings. In all the things, the one thing is common, that anybody who wants to take the objection should take it at the very first instance, first condition. Second, if there is a possibility of framing of issues, then before the settlement of issues. Third, even if it is there, that objection was taken, and objection was taken prior to settlement of issues, and a decree is ultimately passed, still the appellate or the revisional court will not be so technical only to see in respect to the objection, but will say whether that objection has ultimately given a consequent failure of justice, meaning thereby कि ऐसा हुआ, उस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से डिसाइड ना करने के कारण, या उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर ना करने के कारण कंसिक्वेंट फेलियर हुआ उस व्यक्ति के अगेंस्ट. राइट? नाउ सेक्शन 21A. लकी, रीड आउट सेक्शन 21A. सर पॉइंट 3 रह रहा है अभी. पॉइंट 3 इज इन रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स, जो मैंने अभी आपको ध्यान से सुना ही नहीं.
तो पॉइंट 3 मैंने बताया कि उसके भी वही कंडीशंस हैं और वो प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई कर रहा है, राइट? ओके ओके। लकी गो फॉर सेक्शन 21A. Lucky, I'm not getting your voice. Hello, नीलम, can you hear me? यस सर। अच्छा, आप सुन सकते हो, बोलो फिर पढ़ो। हाँ जी। लकी, So section 21A, यस, bar on, yes sir, हम्म, सर आवाज आ रही है? Section 21A, bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing. No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title on any ground based on a objection as to the place of suing. सेक्शन 21A has सर been आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। Wait, section 21A has been made with a specific condition that we have to take into consideration those propositions where an objection is made in respect to place of suing, meaning thereby it is only speaks about the territorial jurisdiction. It does not speak about any other thing, right? Number one. Number two, it says about two things, a former suit and a subsequent suit. And what do we actually mean by the former and subsequent herein? It says that when there is a possibility that a person A has filed a suit against B and in which an objection is taken in respect to the territorial jurisdiction of the court. Thereafter, another suit is filed between the same parties or the parties which are litigating under the same title. जैसे एक आदमी A था, A ने B के खिलाफ मुकदमा फाइल किया, B ने आके ऑब्जेक्शन लिया कि यहाँ की कोर्ट ये नहीं देख सकती क्योंकि इसे जुरिडिक्शन नहीं है। इन बिटवीन B की डेथ हो गई या जिंदा भी रहा तो एक और सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ A और B के बीच में, या A और B के जो लीगल LR हैं या जो लिटिगेट कर रहे हैं सेम टाइटल के लिए उनके बीच में। तो जो बाद का सूट होगा, अगर वो डिक्री पास होने के बाद फाइल हुआ, दो कंडीशंस है, दोनों बहुत ध्यान से सुनना इसे, कि अगर पहले वाले में डिक्री हो गई व्हाइल टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन कि वो ऑब्जेक्शन उठ चुकी थी, तो सिमिलर ऑब्जेक्शन इस रेस्पेक्ट में फाइल दूसरे सूट में नहीं की जा सकती कि पहला सूट जो डिक्री हुआ उसमें टेरिटोरियल कैपेसिटी नहीं थी कोर्ट को मुकदमा सुनने की। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुकदमा पहले कौन सा फाइल हुआ था, यानी ये भी हो सकता है कि दो मुकदमे साथ साथ चल रहे थे, कोई एक पहले फाइल हुआ एक बाद में फाइल हुआ और जो बाद में फाइल हुआ तो पहले डिसाइड हो गया। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 21A फॉर्मर सूट उसे माना जाएगा जो डिसाइड पहले हुआ, ना कि इंस्टीट्यूट पहले हुआ, ठीक है। और जो बाद में बचा हुआ मुकदमा है उसमें ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं ली जा सकेगी जैसे कि ऑब्जेक्शन पहले वाले सूट में ली गई थी और यह कहा गया था कि आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस बेसिस पे सेकंड सूट का डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं होगा। या ऐसी कंडीशन है कि ए और बी के बीच में एक सूट फाइल हुआ, बाद में दूसरा सूट फाइल हुआ, यह कहते हुए कि पहला वाला जो सूट था उसमें डिक्री को मैं चैलेंज करता हूं, इसलिए चैलेंज करता हूं कि वहां टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ही नहीं था, तो इस ग्राउंड पे भी सेकंड सूट एंटरटेनेबल नहीं होगा, राइट। सो नाउ कम टू सेक्शन 22 को एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? सर वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। सर वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अब आ रही है? हेलो, आ रही है? हेलो, हाँ जी सर अब आ रही है। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी सर अब आ रही है। मैं बताता हूँ क्यों हो रही है ब्रेक। हाँ, अब नहीं होगी। अब आ रही है? हाँ जी सर अब आ रही है। ओके, हाँ जी।
Neelam, section 22, please read out. मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? Power to transfer suits which may be power to transfer courts. It seems that you have a connection problem. Wait, And I think you have a connection problem. We are not getting your voice properly. Vipin, can you hear me? Yes, sir. हाँ, you please read out. लगता है उनका कनेक्शन में प्रॉब्लम है. पढ़िए. where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant, after notice to the other parties, may, at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, apply to have the suit transferred to another court. Wait. Now, section 23, 24, 25. All these three sections deal about the transfer of the suit or proceedings. Right? So, suit, appeal, or even proceedings. So, section 23 gives a general, section 22, sorry. Section 22 gives a general power. Section 23 gives power, especially powers, and 24 thereafter, and then 25. All four speaks about power of transfer. Section 22 is a general power of transfer. It generally speaks that when a person, when a matter has been filed against the other person, how and when and where and on what grounds and ultimately for what reason and at what stage he can file an application to get his suit transferred. Right? Now read it out. And the courts to which such application is made, after considering the objections of the other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. Read out again. It's an important section. And read out in the manner I have told you. Read out. Whereas power to transfer suits which may be instituted in more than one court. Wait. So that's the wait. That's the most important part, that this section applies, it specifically says that this section applies to those stages or those contingencies where a suit which has been filed, it does not say it has been filed on the wrong footing. It does not say that it has been filed before a court which does not have the jurisdiction. It simply says that there are possibilities that a suit may have been filed before two different courts, so three different courts, depending on some conditions. जैसे हम पहले कहते थे कि एक आदमी ए है और बी है, उन बी कहीं 2, 3, 4 डिफेंडेंट थे, एक ने बी एक अकेला डिफेंडेंट है उसके जगह फाइल कर दिया, बाकी आके ऑब्जेक्शन ले लिया, या हमने एक मुकदमा फाइल किया सेक्शन 20 क्लोज सी के बेसिस पे कि कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और कोज ऑफ एक्शन वहां कंटिन्यूअस फॉर्म में था, 2, 3, 4 जगह अराइज हुआ था, तो डिफेंडेंट आया, उसने कहा भाई जिस कोज ऑफ एक्शन की बात कर रहा वो इतना सब्सटेंशियल नहीं है, या जिसको जो जहां बेसिक डिसीजन होना है, जिससे कि बेसिक सब्जेक्ट मैटर का इफेक्ट होना है, वो गड़बड़ हो रहा है, तो उस तरीके की ऑब्जेक्शन जहां पर मुकदमा एंटरटेन हो सकता था उसके बावजूद भी उस एंटरटेनमेंट को चैलेंज किया जा सकता है. अब पढ़िए कि वो क्या क्या ग्राउंड्स है. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant, after notice to the other parties, may, at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement. Wait. So this specifically says that the defendant will apply for the application. यानी कि एप्लीकेशन पर होगा, एप्लीकेशन के अलावा कोई और बात अभी अपने आप में नहीं बोल रहा है, केवल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन का नोटिस भी देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, और वो जो है जब उसे फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दिमाग में ये रखने वाली बात है कि ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कोई शू मोटो एक्शन की बात नहीं कर रहा कोर्ट का,
जैसे हम आएंगे सेक्शन 24 में हमें दिखाई देगा, तो वह ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि एप्लीकेशन लगाओगे आप, एप्लीकेशन लगाने के बाद वो आप सर्विस कराओगे सामने वाली पार्टी को उसके, और वो एप्लीकेशन फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे होनी चाहिए या जहां मुकदमे में इशू फ्रेम होने हैं उस इशू फ्रेम होने से पहले होने चाहिए। आगे बढ़िए। So the defendant will apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made, after considering the objections of the other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. Yes. So now the court will have the jurisdiction to entertain his objection whether that particular suit should be entertained further or should be transferred to other court. Why so? Because the earlier court, the first court, it was not so that he was never having the jurisdiction. It is only in respect to something like more convenient manner or more possibilities of fair adjudication or better evidence appreciation, right? All these things will be taken into consideration, and then the court will see to the objections whether it is entertainable or not. So we come to the conclusion that there is a possibility an application can be made even when the court was having jurisdiction on the grounds as mentioned in the section, right? Then thereafter, why is it so? He has to move an application. Application should be moved with notice, and ultimately the court has to see about the objections of it, and thereafter, considering all the circumstances, will make it. An application should be made at the first possible opportunity. And if the suit, if there is a proceeding or suit where the issues are to be settled, then before the settlement of issues. Next, continue. आगे बढ़िए। The several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. An application under section 22 shall be made to the appellate court. Yes, they have also made it very clear कि when, read it out again. Where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. An application under section 22 shall be made to the appellate court. So where they are saying when there is a common appellate court, who will entertain this issue? The appellate court itself. Next. Where such courts are subordinate to different appellate courts, but to the same high court, the application shall be made to the said high court. Yes, where they are saying that the high court is same, but the read out say, जब पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है आपके। अगर देखिए तीन कंडीशंस के सेक्शन 23 तीन कंडीशंस क्रिएट करता है। अगर सेम अपीलेट कोर्ट है तो अपीलेट कोर्ट को चला जाएगा, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट है तो हाई कोर्ट को चला जाएगा, और यहाँ वेट सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा करेक्टर है इसमें, डिफरेंट हाई कोर्ट है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को चला जाना चाहिए, राइट? बट इट इज नॉट सो। डिफरेंट हाई कोर्ट है तो ये कहता है कि जहां मुकदमा फाइल हुआ पहले, यानी प्लेस ऑफ सुइंग एग्जिस्ट करती थी, उस हाई कोर्ट को जाएगा, राइट? पढ़िए तीसरा, पढ़िए ध्यान से फिर से। Where such courts are subordinate to where such courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court, within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situate. अब मुझे कोई बता सकता है कि ये क्यों किया? सब लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि ये लिखने का मतलब क्या हुआ? दो हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट को प्रेरोगेटिव क्यों दिया गया? सुप्रीम कोर्ट बोलो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन रहता है और उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा उसको स्पीडी। आपका वीडियो नहीं आ रहा मेरे सामने आओ। कैसे आते हैं? सामने ही हो सर। अच्छा, वो शायद 4 ही लोग दिखते हैं उसको ऐसे। सर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन रहता है और लिमिटेड कोर्ट ऐसा कुछ।
बेवकूफी वाले जवाब नहीं चाहिए मेरे को। अब यू व्हेन यू ऑल आर प्रिपेयरिंग समथिंग लाइक जुडिशरी, और व्हेन यू से दैट यू आर ऑल द लॉयर्स विद स्टैंडिंग ऑफ 2 3 4 5 6 7 और जो भी ईयर्स हैं, देन डोंट गिव सच ए न्यूसेंस आंसर टू मी। एनी अदर सजेशंस? लकी कुछ दिमाग में आ रहा है? लकी, कैन यू से समथिंग? सर जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होगा उसके पास राइट होगा मतलब सर उसका केस का। काफी हद तक आप- ठीक कह रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहे हो कि तो खुद कंफ्यूज हो। इसलिए क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 23 बेसिकली सेक्शन 22 को आगे लेके जाता है, और वो ये कहता है कि भाई 22 में ये था प्लेस ऑफ सुइंग पे कोई झगड़ा नहीं है, यानी कि उसे दो कोर्ट को एंटरटेन करने का राइट था। अब सिर्फ ये देखना है कि किसको बेटर तरीके से डील करे, तो उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है, उसकी हाई कोर्ट जो है, उसको देखने दो कि भाई हमारे से छीन के आप कुछ ले जा रहे हो, कुछ अधिकार तो हमारा भी था, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ अधिकार भी हमारा था। तो इस वजह से चूंकि मेरा राइट है, मेरी सबऑर्डिनेट कोर्ट का आप राइट लेके जा रहे हैं, तो आई हैव टू सी कि क्या वो राइट बनता भी है कि नहीं बनता, राइट? क्योंकि यहां ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं था, और ना ही सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 की स्थिति यह है कि वहां सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक तरीके से पावर्स दिए गए, उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस थी, लेकिन यहां पर वो केवल एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए दिए गए, वहां जुडिक्शन की कोई बात नहीं होती। तो यहाँ जुडिक्शन की बात है, जुडिक्शन अवेलेबल था, तो उस हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के कारण, वो लीगली चीजों को जस्टिफाइबली देख सकती है कि क्यों एप्लीकेशन मूव की गई है, उसका कोई आधार है भी कि नहीं है, राइट? नाउ सेक्शन 24, लकी। Section 24, general power to transfer and withdrawal. Wait. On the application. वेट, नाउ सेक्शन 24 22 और 23 से कुछ डिफरेंट बात करता है। वो दो बातें करता है, इट स्पीक्स अबाउट ट्रांसफर और विड्रॉल। तो विड्रॉल वर्ड जैसे ही आया, इससे ऑटोमेटिकली लगता है कि ये पावर्स उन पावर्स की बात करेगा जो पावर कहीं ना कहीं किसी सुपीरियर कोर्ट के पास ही हो सकती है, क्योंकि कोई किसी से विड्रॉ कब कर सकता है? जो दे सकता है, जो दे नहीं सकता वो वापस ले कैसे सकता है? तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, एक ट्रांसफर की कंडीशन और एक विड्रॉल की। विड्रॉल मींस हम हमेशा कहीं ना कहीं जो कोर्ट मुकदमा चला रही है उससे ऊपर की कोर्ट के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यू। On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or its own motion, without such notice the High Court or the District Court may at any stage. Point A. Transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same. Or point B. Withdraw any Wait. suit, appeal. वेट, पढ़ते पढ़ते चूंकि मैं अपना म्यूट कर देता हूं, तो मेरे हाथ की तरफ भी देखते रहा करो दो लाइनें पढ़ने के बाद। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट बात सबसे यही होती है कि आप लेजिस्लेचर ने जो लिखा है ना, उसे कहानियां नहीं पढ़नी। हम वी आर नॉट रीडिंग हिस्ट्री, वी आर नॉट रीडिंग साइंस, वी आर रीडिंग लॉ। और लॉ में हर कोमे का कमाल है, उसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तो आपको सबसे पहले टाइटल पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद वहीं रुको, क्योंकि मैं बार बार म्यूट अनम्यूट करूंगा तो दिक्कत होगी। तो उसे देखो, मेरी तरफ देखो, मैं अपने हाथ से आपको हाथ रुकने को कहूं तो रुक जाओ, ताकि मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है, क्यों आया वो। अब पढ़ो दोबारा सेक्शन 24 का टाइटल, ट्रांसफर विड्रॉल की बात करता है, रुक गया। अब पढ़ो पहला प्रोविजन। On the application of any other parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or its own motion वेट, without. यहीं से पता चलता है कि अब दो कंडीशन हो गई। इससे पहले ये दो कंडीशंस कहीं आपको नहीं दिखाई दी, राइट? 22 में और 23 में। यहां एप्लीकेशन की बात भी कर रहा है और ऑन मोशन की बात भी कर रहा है, यानी कि यहां ट्रांसफर, जैसी विड्रॉल की बात आई थी ना,
यानी कि जो अपील, जो भी कोर्ट यहाँ ट्रांसफर कर रही है या जो भी कोर्ट विड्रॉ कर रही है किसी प्रोसीडिंग को, ना सिर्फ उस एप्लीकेशन पे, यानी जो व्यक्ति चाहता है उस प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कराना, उसकी एप्लीकेशन लग सकती है, प्लस कोर्ट खुद भी ऐसी स्थिति किसी एक से लेके कोर्ट से लेके दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है या वहां से विड्रॉ कर सकती है। विड्रॉ का मतलब समझना पड़ेगा आप लोगों को, विड्रॉल का मतलब हमेशा ट्रांसफर नहीं होता। एक से लिया तो विड्रॉ हो गया, यहां तक दूसरों को दे दिया तो ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक से लेके अपने पास रख लिया, वो कोर्ट हमेशा समझो जो ऊपर की कोर्ट है उसको जुरिडिक्शन, लोअर कोर्ट का जुरिडिक्शन इनबिल्ट कैरेक्टर के तौर पर उसके पास माना जाता है। वो चाहे तो अपने पास रख के भी, इसलिए आगे जब आप इस मुकदमे इसमें चलेंगे इस प्रोविजन में, तो आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक कि ट्रायल और एक प्रोसीड। राइट, ट्रायल करेगा जैसे कि भाई खुद भी मुकदमा चला सकता है और विड्रॉ करके उसे ट्रांसफर भी कर सकता है। तो यहां दो कंडीशन है, एक तो एप्लीकेशन पे चलेगा या शूमोटो चलेगा, ट्रांसफर, सूट, अपील और प्रोसीडिंग। एक तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बातें समझनी चाहिए, मैं आपको ब्रीफ में समझाता जाता हूं कि सेक्शन 24 सूट, अपील और प्रोसीडिंग तीनों पे लाई करता है। प्रोसीडिंग्स का उदाहरण जैसे कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ये ट्रांसफर की बात भी करता है, विड्रॉल की बात भी करता है कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। नंबर एक, एप्लीकेशन पे नोटिस मैंडेटरी है, बगैर किसी को सुने आप एक्स पार्टी ऐसी खामखा ट्रांसफर नहीं कर देंगे। राइट, एप्लीकेशन प्लस नोटिस। इसके अलावा विड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या संभावना होगी, सेक्शन आप आगे पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगी, मैं अभी बता देता हूं। विड्रॉ करने के बाद संभावना क्या होगी कि खुद ट्रायल कर ले और डिस्पोज कर दे मुकदमा, और या ट्रांसफर कर दे, ए से ले बी को दे दे, या उसके बाद रीट्रांसफर भी कर सकता है कि अगर लगा उसने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई गई, उसने ट्रांसफर अपने पास विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल करने के बाद देखा कि यार ये मुकदमा तुमने गलत खामखा ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। राइट, तो वापस रीट्रांसफर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि ट्रांसफर का एक ग्राउंड कहीं ना कहीं बायसनेस ऑफ द कोर्ट भी है। मान लीजिए किसने किसी जज पे एक एलिगेशन लगाया कि भाई ये जो जज साहब हैं मेरे साथ कभी एलएलबी में पढ़ा करते थे और मैं तो होशियार स्टूडेंट था, ये गधा था और मेरे से बड़ा चिढ़ता था, आज ये तुक्का लगा के जज बन गया, या मुझे इसकी ऑनेस्टी पे शक है, या मेरी पर्सनल ग्रीवियंस है, और वो चीजें साबित नहीं हो पाई हैं। राइट, या ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसाइड करने के बाद भी दो ही कोर्ट अवेलेबल थी, उससे विड्रॉ तो कर लिया कोर्ट ने, बाद में देखा एक ही सिंगल कोर्ट है और जज चला जा चुका है, वो वापस उसी कोर्ट में भेज सकता है। राइट, क्योंकि कोर्ट तो सक्सेसर की तरह एक्ट करता है। समझ में आ गया? हाथ उठा दिया करो जब समझ में आ जाए तो सब लोग। आगे पढ़िए आगे। Point A. Transfer any suit, appeal, or other proceeding pending before its court trial or disposal to any court subordinate to its any competent to try or dispose of the same. क्या पढ़ा आगे? आपने? पढ़ो आगे। Point B. Withdraw any suit, appeal, or other proceeding pending in any court subordinate to it. ठीक है, मीनिंग दियर बाय उन्होंने कह दिया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सूट। अब कैसे पॉसिबिलिटीज की होगी? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 24। सेक्शन 24 किस किस को पावर देता है? 22, 23 को। ये तुक्के नहीं बेटा, लोग ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे आप लोग। बताइए कौन बताएगा? हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यस, तो जब सेक्शन 24 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों की बात कर रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि भैया अपील भी चल रही हो। जैसे कि ये स्थिति थी कि एक व्यक्ति ने सिविल जज के यहाँ से एक डिक्री पास हुई या एक ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चल रही थी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, रेगुलर फर्स्ट अपील। तो उसने कहा कि भैया डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो मुकदमा सुन रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ठीक नहीं कर रहे, सही तरीके से डिसाइड नहीं कर रहे, और या इनसे मेरी ग्रीवियंस है या मेरे ये कारण है, और उसको हाई कोर्ट भी देख सकता है। मीनिंग देयर बाय सेक्शन 24 कन्फर्स द पावर ऑन बोथ द थिंग्स, बोथ द कोर्ट्स, रादर डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्यों कहा मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते ही? व्हाई इज इट सो? बिकॉज कि जब आप सेक्शन 24 पढ़ते हो तो वहां आपने डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा पढ़ी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज की तरह डिफाइन है। राइट,
आगे पढ़ो। Proposal to any court subordinate to and it's competent to try or dispose of the same, or retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. तो वॉइस नहीं आ रही है आपकी को जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं कि एक व्यक्ति ट्रांसफर भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ट्रांसफर करने के बाद खुद आगे जा सकता है, राइट। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दूसरे को जज को भेजे या उसी जज को वापस भेज दे जहां से मुकदमा वापस लिया गया था, राइट। अब सेक्शन 24 आगे बताएगा कि सेक्शन 24 उन कोर्ट्स पे भी अप्लाई करता है जो उन्हें ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मीनिंग दियर बाई कि सेक्शन 24 में जो व्यक्ति एप्लीकेशन लेके जाता है, राइट, कि भाई तो उसके पास एक ग्राउंड ज्यूरिसडिक्शन का भी हो सकता है। जिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उससे भी ट्रांसफर और विड्रॉल की बात कर सकती है। मान लीजिए किसी गलत कोर्ट में मुकदमा फाइल हो गया, राइट। क्या मुकदमा फाइल हो गया कि भाई ये टेरिटरी तेरे जुडिक्शन में पड़ती नहीं है, या तूने गलत तरीके से पेक्यूनियरी जुडिक्शन तेरा बनता नहीं, तूने मुकदमा एंटरटेन कर लिया, 5 लाख रुपए मुकदमा सिविल जज साहब ने एंटरटेन कर लिया, क्योंकि ध्यान से उन्होंने देखा ही नहीं कि